Good morning, students. Today we will do some numericals. First of all, the initial velocity of a particle is 2 I cap plus 3 j cap meter per second, and the acceleration of the particle is 4 I cap plus 2 j cap meter per second square. ठीक है जी, and this acceleration is constant. हमसे क्या पूछा गया है? Find the velocity at t is equal to 2 seconds and the displacement in 2 seconds. ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखें. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equal to u plus at. ये जो डाटा है, u is initial velocity at t is equal to 0. Substituting the values, u is 2 I cap plus 3 j cap plus acceleration is 4 I cap plus 2 j cap into time is 2 seconds. ठीक है जी, तो velocity is 2 I cap plus 3 j cap plus 8 I cap plus 4 j cap. तो final velocity at t is equal to 2 seconds is 2 I cap plus 8 I cap is 10 I cap plus 3 7 j cap. 3 j cap plus 4 j cap is 7 j cap meter per second. Its velocity becomes 10 I cap plus 7 j cap meter per second after 2 seconds. So this is the velocity at t is equal to 2 seconds. फर्स्ट पार्ट का आंसर बच्चों ये हो गया. अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट. Find the displacement after 2 seconds. Velocity after 2 seconds. Find the velocity and displacement after 2 seconds. So velocity after 2 seconds becomes 10 I cap plus 7 j cap meter per second. Similarly, using second equation of motion, s is equal to ut plus half at square. S is u times t. 2 I cap plus 3 j cap, t is 2 seconds, plus half into a half into a constant acceleration. We can use these equations only if acceleration is constant. t square is 2 square. बच्चों ये 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है, ध्यान से देखें. तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 4 I cap plus 6 j cap plus 8 I cap plus 4 j. So in vector form, displacement is 12 I cap plus 10 j cap meters. So in first 2 seconds, 12 I cap plus 10 j cap is the displacement, and after 2 seconds, 10 I cap plus 7 j cap meter per second is its velocity. Next question is, a ball is thrown upwards from the top of a tower 40 meters high with speed 10 meter per second. Find the time of flight, that is time after which it strikes the ground. Take g as 10 meter per second square. तो बच्चों देखो पॉइंट ए क्या है, टावर का टॉप मोस्ट पॉइंट है, टावर की हाइट है h is 40 meters. h is 40 meters. तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों? 0, h. ठीक है जी, इसको 10 मीटर पर सेकंड से अपर डायरेक्शन में इसको थ्रो किया. अपर इज j कैप, तो ये ऊपर जाएगा, स्लो होगा, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे रेस्ट पे आएगा, फिर नीचे, फिर ये नीचे की तरफ गिरेगा. ठीक है, तो t is equal to 0. तो ये पॉइंट ए पे था, ऊपर गया, स्लो पे रेस्ट पे आया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेस्ट पे आया, फिर ये नीचे आया, फ्री फॉल. रेस्ट पे आने के बाद इसका फ्री फॉल हुआ. पॉइंट बी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड. रेस्ट पे आया बी के बाद इसका फ्री फॉल होगा, फिर ए को क्रॉस करेगा. तो अब इसके बाद ग्राउंड टू
ओ पे इसने स्ट्राइक किया, ओ को ओरिजिन मान लो बच्चों, तो ओरिजिन इज 0,0, तो ये जो लाइन है ओ ए बी, दिस इज y एक्सिस, तो ये बच्चों केस कौन सा हो गया, दिस इज बाउंडिंग मोशन अलोंग y एक्सिस, दिस इज बाउंडिंग मोशन अलोंग वर्टिकल। तो मान लो इसने t इज इक्वल टू 0 पे इसको थ्रो किया गया, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, तो फाइनली ग्राउंड को इसने हिट किया, t इज इक्वल टू कैपिटल T पे, तो हमसे पूछा गया फाइंड कैपिटल T, ठीक है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, sy इज इक्वल टू u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट देखें, इनिशियल पॉइंट a है, फाइनल पॉइंट o है, तो डिस्प्लेसमेंट इज a, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इज a h माइनस j कैप, डिस्प्लेसमेंट इज AO का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, हाइट ऑफ टावर के बराबर है 40 मीटर्स, ठीक है। तो SY इज h माइनस j कैप, UY इज 10, ये h की वैल्यू हमारे पास है 40, h इज 40, सो कैपिटल H इन मैग्नीट्यूड इज 40, A is initial point, O is final point, path is AB plus DU, displacement is AU, T is capital T plus half G minus J कैप को हम ऐसे लिख लें, T is time interval which is capital T, तो बच्चों ये J कैप इग्नोर हो गया, तो इस तरफ -40 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो G को हमें बोला गया 10 लेगा, चलो लिख लेते हैं, तो -40 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, तो RHS की सभी टर्म्स को LHS में ले आते हैं, तो क्या आ गया 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी कर चुके हैं, इसको अगर सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा 4 सेकंड्स, तो आफ्टर 4 सेकंड्स इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड अगेन नहीं सॉरी, आफ्टर 4 seconds it strikes the ground for the first time. Next question is, a ball is thrown with speed 10 meter per second at an angle 60 degree with ground, ठीक है जी। तो ये 2D मोशन का केस है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। लास्ट क्वेश्चन 1D मोशन के बेस था, दिस इज केस ऑफ 2D मोशन, x एक्सिस y एक्सिस, तो ओरिजिन से मान लो एक बॉल को प्रोजेक्ट किया बच्चों विद स्पीड u is 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, थीटा इज 60 डिग्री। तो हम चाह रहे थे ये इस लाइन के अलोंग जाए, बट ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। तो देखो बच्चों हमने डेराइव किया है, T इज इक्वल टू कैपिटल T पे ये हिट करेगा, इसको ओरिजिन ले लो, T इज इक्वल टू 0 पे थ्रो किया गया, तो जिस पॉइंट पे हिट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r, 0, r is the maximum horizontal distance traveled by it and it is called the range of the projectile। तो रेंज बच्चों क्या होती है, रेंज इज u square sin 2 theta by g, ठीक है जी। तो रेंज इज u square, तो रेंज इज u is 10 square, g is also 10, इससे ये कैंसिल हो गया, sin 2 theta 10 into sin 2 theta, theta is 60, तो रेंज इज 10 into sin 120,
10 इंटू साइन 120, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 इंटू साइन 90 प्लस 30। एड शुगर 2 कप्स, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया 90 प्लस, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, 90 वाले चेंज हो जाते हैं 10 cos 30, तो cos 30 is under root 3/2, तो range comes out to be 5√3. 5√3 is approximately 8.5, in fact greater than 8.5 meters. So distance OP, horizontal distance OP is approximately greater than 8 meters. तो हमसे तो पूछा गया है when it is at a horizontal distance of 3 meters, उस टाइम इसकी हाइट बताएं, और जब इसको स्ट्राइक करेगा उस टाइम तो हाइट 0 जाएगी ना, ये तो वैसे ही, ये बच्चों ये तो वैसे ही मैंने आपको रेंज कैलकुलेट करके दिखा था। हमसे पूछा गया जब वो पॉइंट, जिस पॉइंट से हमने उसको थ्रो किया है उस पॉइंट से 3 मीटर दूरी पे, ठीक है जी, मान लो ये जो पॉइंट T है, OT is 3 meters, जो T ना लो L ले लो, OL is 3 meters। तो बच्चों L के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3,0, तो जब वो बिल्कुल L के ऊपर है, ठीक है, जो वो बिल्कुल L के ऊपर है, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मान लो जब वो L के बिल्कुल ऊपर है, तो पॉइंट O इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो OL इज 3 मीटर, जब बिल्कुल 3 मीटर उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, जब बिल्कुल वो L के ऊपर है, तो इस पॉइंट K के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट तो 3 ही होगा, और K की जो हाइट है L से, मान लो दिस हाइट इज y, तो ये y पूछिए उसने हमसे, वी हैव टू कैलकुलेट दिस y। तो K के कोऑर्डिनेट्स, कोई पॉइंट है K, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y, x तो 3 ही होगा, K इज above point L, K is 3, y, तो हमें y निकालना है, y is the height of point K, point K is horizontally 3 meters away from the point of projection O। हमने रिलेशन पढ़ा है y और x के बीच में, y is equal to x tan theta minus 3x square by 2u square cos square theta। इसमें बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। y हमने निकालना है पॉइंट K का y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इज 3, थीटा इज 60 डिग्री, tan 60 हमें पता है, माइनस ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इसमें वैल्यू पुट कर दो, माइनस g, g इज 10, x इज 3 square by this is by 1 by 2, u is again 10, it is thrown with speed 10 meter per second, n square into cos square theta, theta is 60, cos 60 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम बच्चे। तो tan 60 is √3, ये आ गया y is equal to 3√3 by 1, 10 स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, माइनस 9 by 20, cos 60 is half का स्क्वायर इज 1 by 2, ये 5 आ गया, तो बच्चों y आ जाएगा 3√3 माइनस 9 by 5, 1.8,
3√3, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3√3 इज 1.73, अप्रोक्सीमेटली 5.2 अगर हम ले लें तो 5.3 ले लो, 5.2 minus 1.8, this is approximately 3.5, ये approximately है। तो 3.5 is the height of 3.5 meter is the height of point K above the ground. Next is, if a thrower can throw with a maximum speed of 100 meter per second, find the maximum horizontal distance up to which he can throw, to which he or she can throw. कोई थ्रोअर है, मान लो जैसे ओलंपिक में डिस्कस थ्रो एक इवेंट होता है, या हैमर थ्रो होता है। एक हैमर थ्रोअर है, वो मैक्सिमम स्पीड 100 मीटर पर सेकंड के साथ हैमर को फेंक सकता है। फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अप टू विच, ठीक है। अगर देखो बच्चों उसने थीटा 90 डिग्री कर दिया, तो ऐसा करके फेंक दिया, यू कितनी दे सकता है वो 100 मीटर पर सेकंड। इस केस में थीटा क्या हो गया, तो 90 डिग्री हो गया। अगर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ 90 कर दे, फिर तो जहां वो खड़ा है पॉइंट ए पे खड़ा है, तो ऊपर जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, फिर फ्री फॉल होगा, उसी के सिर के ऊपर जाके हिट करेगा। इस केस में तो रेंज 0 होगी। तो हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अपने से ओ पे वो खड़ा है, ओ से उसने फेंका, कितनी दूर फेंक सकता है, मतलब ओपी की मैक्सिमम वैल्यू। ओपी क्या होती है, रेंज। हमसे क्या पूछा गया, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू, कितना ज्यादा से ज्यादा दूर फेंक सकता है। उसकी बाजुओं में जो ताकत है, उसकी वजह से वो स्पीड कितनी दे सकता है, 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर तो ये रेंज किस पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन द थीटा, जिस थीटा से उसने फेंका, क्योंकि 100 मीटर पर सेकंड इज कांस्टेंट, तो उसकी एबिलिटी है, उसकी मसल पावर है, उसकी मसल्स में जो पावर है, तो उस पावर की वजह से वो मैक्सिमम स्पीड कितनी दे सकते हैं, 100 मीटर पर सेकंड। तो कांस्टेंट है, उसकी मसल पावर पर डिपेंड करती है। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर फेंक सकते हैं, मतलब मैक्सिमम रेंज। तो हमें पता है रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, ठीक है। तो u स्क्वायर इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, तो sin 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा, रेंज इज मैक्सिमम, u स्क्वायर बाय g इज अ कांस्टेंट इनटू sin 2 थीटा। तो ये क्या है, दिस इज कांस्टेंट, तो sin 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, u is constant, g is constant, sin 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस OP टू बी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा दूर फेंक। डिस्कस थ्रो होता है, हैमर थ्रो होता है बच्चों, शॉट पुट होता है, 3 इवेंट्स होते हैं। उस केस में विनर कौन होता है, तो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में आपने देखा होगा, तो ये इवेंट्स हैं अलग अलग, जैसे 100 मीटर रेस है, तो यहाँ कौन विनर होगा, डिस्कस थ्रो में, शॉट पुट में विनर कौन होगा, जो ज्यादा से ज्यादा दूर फेंके। जेवलिन थ्रो में कौन विनर होता है, जो ज्यादा से ज्यादा दूर फेंके, ठीक है। तो उनका जो थ्रो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है। तो ये डिपेंड करेगा बच्चों sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा की साइन ऑफ एनी एंगल हैज मैक्सिमम वैल्यू +1, साइन ऑफ एनी एंगल की जो वैल्यू है वो +1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो हमें पता है sin 90 डिग्री +1, तो इसका मतलब क्या, बच्चों 2 थीटा इज 90 डिग्री, तो थीटा इज 90 डिग्री बाय 2, थीटा इज 45 डिग्री। तो जब भी हम कोई थ्रो फेंकें एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है, पूरा जोर लगा, तो
उस केस में वो जो मैक्सिमम दूरी तय करेगा अलोंग द ग्राउंड, तो सबसे ज्यादा दूर जाके वो गिरेगा ग्राउंड के ऊपर। अगर एंगल विद विच इट वाज थ्रोन इक्वल्स 45 डिग्री, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो स्टूडेंट्स, तो रेंज मैक्सिमम क्या आ गई बच्चों? तो साइन टू, रेंज मैक्सिमम के लिए साइन टू थीटा क्या होगा? साइन टू थीटा इज +1, तो रेंज मैक्सिमम इज u स्क्वायर बाय g, तो u स्क्वायर बाय g इज मैक्सिमम रेंज। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। कोई भी थ्रो कितनी मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करवा सकता है प्रोजेक्टाइल को, उस केस में उसको 45 डिग्री से फेंकना पड़ेगा। साइन टू थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 इज 1, तो मैक्सिमम रेंज इज u स्क्वायर बाय g। मैक्सिमम रेंज इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड इज u स्क्वायर बाय g। u square by g is the maximum horizontal range possible by any thrower if he or she throws the particle with speed u. G is a constant. Next question, बच्चों, show that if a particle is thrown with same speed u meter per second in two different cases with two different angles theta and alpha respectively, with two different angles theta and alpha respectively, it would have same range if theta plus alpha is 90 डिग्री। मतलब थीटा और जो अल्फा है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों का सम 90 डिग्री है, तो उस केस में रेंज उसकी सेम होगी। तो दो केसेस में मैं जैसे एक बार इसको यू स्पीड से थीटा एंगल से फेंका, मान लो इस केस में जो रेंज आई दिस इज r1, और दूसरे केस में उसी को फिर यू स्पीड से फेंका लेकिन विद एंगल अल्फा, इस केस में जो रेंज आई वो है r2। ये कह रहा रेंज सेम है, मतलब r1 इज इक्वल टू r2 है। ये शो करो कब? जब थीटा और अल्फा 90 डिग्री है, जब थीटा और अल्फा 90 डिग्री। इसमें बच्चों यूज होगा साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज 90 वाले चेंज हो जाते हैं, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें ये दो आइडेंटिटीज यूज होंगी। तो देखो बच्चों यहाँ रेंज क्या होगी? रेंज का फार्मूला है, रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है रेंज का फॉर अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन बिटवीन two different points that lie on the same ground, same horizontal plane। तो इस केस में रेंज फर्स्ट केस में बच्चों दिस इज केस 1, दिस इज केस 2। तो फर्स्ट केस में बच्चों रेंज क्या होगी? r1 इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। इस केस में सेकंड केस में बच्चों रेंज क्या होगी? r2 इज u स्क्वायर, एंगल इज अल्फा, साइन 2 अल्फा बाय जी। ठीक है बच्चों, तो हमें एक ये भी पता है साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन 2 अल्फा इज 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है जी। तो जो रेंज है फर्स्ट केस में, जो रेंज है फर्स्ट केस में वो क्या होगी बच्चों? तो दिस इज u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री, तो यहां से क्या आ गया? थीटा इज 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये हमने शो करना है, दिस वी हैव टू प्रूव।
थीटा इज 90 माइनस अल्फा, तो आप समझ ही गए हो। तो रेंज क्या आ गई, R1 क्या आ गई, फर्स्ट केस में u स्क्वायर इंटू 2, रेंज इज u square into 2, range is u square into 2, u square into 2 sin theta, theta is 90 minus alpha into cos theta, theta is 90 minus alpha whole by g। ठीक है बच्चों, इसको ये सेकंड केस में रहेंगे, इसको अलग रख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, तो sin 90 minus theta is sorry sin 90 minus alpha is cos alpha, so it becomes u square into 2, u square into 2 cos alpha cos 90 सॉरी cos 90, ये गलत लिखना है, ऐसे ये गलती होगी। थीटा इज 90 माइनस अल्फा, तो u स्क्वायर इनटू 2 इनटू sin 90 माइनस अल्फा इज cos अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा इज sin अल्फा होल बाय g। तो देखें अब ये क्या हो गया, 2 sin अल्फा cos अल्फा क्या हो गया, u स्क्वायर बाय g तो है, तो 2 टाइम्स cos अल्फा sin अल्फा क्या हो गया, sin 2 अल्फा। तो ये R1 की वैल्यू है बच्चों, ये R1 को हमने फर्दर इवैल्यूएट कर लिया, थीटा की वैल्यू sin 2 थीटा को लिखा 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, बाय g तो है ही, तो थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो वैल्यू ऑफ थीटा इज 90 माइनस अल्फा, sin 90 माइनस अल्फा इज cos अल्फा, cos 90 minus alpha is sin alpha, again 2 sin alpha cos alpha is sin 2 alpha। तो ये देखें बच्चों, this is same as range R2, इन दोनों को मिलाएं, देखिए ध्यान, तो R1 हमने तो R1 को इवैल्यूएट किया, तो R1 इस केस में अगर थीटा प्लस अल्फा का सम 90 डिग्री है, थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री, R2 के बराबर ही आ गया, दिस इज आल्सो R2। तो इस केस में R1 इज R2 ये हमने प्रूव करना, और हमने कर दिया। दोनों केसों में हमने सेम स्पीड u से प्रोजेक्ट की है विद टू डिफरेंट एंगल्स थीटा एंड अल्फा। थीटा वाले केस में अगर रेंज R1 है, तो अल्फा वाले केस में रेंज R2 है। R1 और R2 बराबर है कब, जब थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने याद रखना है।